of 1400 megawatts with an investment amount involved of 30,000 crore rupees. I will now request Shri S.K. Sharma. I will now request Shri Rahul Jain, Director of Jindal Renewable Private Limited, to come forward, sign the MOU document. This MOU is for investment of 650 crore rupees. It's in the sector of renewable power plant of 140 megawatt. I will now request Mr. D.B. Sundararaman, Vice President Corporate Services of Tata Steel Limited, to come forward, sign the MOU document, please. This MOU is for setting up of the Hisarna Technology Plant. It involves an investment of 7,000 crore rupees. The next MOU is between the Department of Industries and Tata Steel Limited, tin plate expansion. I request Sri Arvind Sinha to kindly sign the MOU document. The MOU promises an investment of 2,600 crore rupees. It's for the expansion of the tin plate plant. I request Sri Gaurav Atha, Director of Amalgam Steel and Power Limited, to come forward and sign the MOU document. This MOU is for setting up of an integrated steel plant, a new steel plant, with a total cost of 4,980 crore rupees. I now request Mr. Parikshit Kaul, Chief of Business Development and Senior Vice President of Ambuja Cement Limited, to kindly come forward and sign the MOU document. This MOU is for setting up of a cement grinding unit
with a total cost of 1,000 crore rupees. I will now request Mr. Pradeep Goyal, CFO of Varun Beverages, to kindly come forward and sign the MOU document. This MOU involves investment of 409 crore rupees. It's for setting up of a bottling plant of carbonated soft drinks and packaged drinking water. We will now proceed to sign the MOUs of the Department of Information Technology and E-Governance. I request Pooja Singhal Madam, Secretary of IT and E-Governance, Government of Jharkhand, to kindly come forward. The first MOU is being signed between State of Jharkhand and Google LLC. So I'll request the representative from Google, Mr. Rajesh Ranjanji, Head of Government Affairs, to please come forward and sign the MOU. This MOU between the Government of Jharkhand and Google LLC aims to build an AI-enabled and cloud-ready ecosystem in the state. It covers collaboration in AI infrastructure, cloud policy advisory, data center modernization, pilot projects in sectors like education, health, and traffic management, and skilling programs for government officials, engineers, and healthcare workers. The MOU will support responsible use of AI and cloud technologies to solve local challenges and strengthen digital governance in Jharkhand. Please have a round of applause. Thank you. The next, I'll request the representatives from Lord's Education and Health Society, known as Vadhvani AI, to please come forward for signing of MOU. So the signing authority from the company is Mr. Milan Nayak, the Chief Functionary and CFO of Vadhvani AI. The non-financial MOU between the Government of Jharkhand and Lord's Education and Health Society aims to leverage artificial intelligence to strengthen the state's public healthcare system.
The collaboration will support deployment of AI-based solutions for TB elimination, maternal and child health, non-communicable diseases, infectious diseases, clinical decision support, and digital health innovations. LEHS will provide technical expertise, implementation support, capacity building, and AI solutions, while the department will facilitate them with integration into existing health programs and governance systems. The partnership is for a period of 3 years and seeks to improve healthcare delivery and bears no financial liability on the state government. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So, we'll now proceed for the MOU signing of Department of Tourism, Arts, Culture, Sports and Youth Affairs. I request Secretary Tourism Mukesh Kumar sir to kindly come forward and sign the MOU document. The details of the MOUs being signed by the department will be shared by Naman P.S. Lakra sir, Director, Tourism. Thank you. The first MOU from the Department of Tourism, Government of Jharkhand, would be signed between Secretary Tourism Shri Mukesh Kumar and Mr. Anurag Charia, Plant Head Jamshedpur, representing Tata Motors. So, Secretary Tourism and between Anurag Charia, the MOU would be to collaborate and promote industrial tourism in Jharkhand through curated visits to Tata Motors Jamshedpur plant. JTDC, that is Jharkhand Tourism Development Corporation, will manage bookings, promotion and tourist facilitation, while Tata Motors will provide guided plant access, safety orientation and operational insights, offering visitors a unique automobile manufacturing experience. The second MOU from the Department of Tourism, Government of Jharkhand, would be signed between Secretary Tourism Shri Mukesh Kumar and Ms. Preeti Satyanarayan, President, Easy Trip Planners, Ease My Trip. Easy Trip Planners, Ease My Trip will collaborate to promote Jharkhand tourism through digital marketing, dedicated microsites, landing pages, content campaigns, social media outreach, customer engagement, and co-branding initiatives. The partnership aims to enhance destination awareness, increase tourist footfall, strengthen the branding, and support sustainable tourism growth in Jharkhand. थैंक यू करो जी बिल्कुल तालियां जोरदार होनी चाहिए। ये सभी हमारे 14 MOUs रोजगार और समृद्धि के आधार बनेंगे, हमारे झारखंड के विकास का आधार बनेंगे। तालियां जोरदार होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये 14 MOUs किए गए हैं और इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। The successful exchange of these MOUs under the visionary leadership of Honorable Chief Minister of Jharkhand, Shri Hemant Soren ji, marks another important milestone in Jharkhand's development and investment journey. और अब हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण दूरदर्शी चरण की ओर बढ़ रहे हैं। जी हां,
हमारा झारखंड राज्य डिजिटल गवर्नेंस में विश्वास रखता है और इसी तर्ज पर एमएसएमई कनेक्ट पोर्टल तैयार किया गया है, जो कि उद्योग जगत, उद्यमियों और सरकार के बीच संवाद, समन्वय और सेवाओं को अधिक सरल बनाने, पारदर्शी बनाने और अधिक प्रभावी बनाने में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होने जा रहा है। हमारे लिए ये बहुत ही गौरव का विषय है कि आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करती हूं, कृपया रिमोट का हरा बटन दबाकर इस एमएसएमई कनेक्ट पोर्टल का शुभारंभ करें महोदय। और तालियां आप सबकी तरफ से जरूर होनी चाहिए। एमएसएमई कनेक्ट पोर्टल। A big round of applause for this milestone. This initiative. झारखंड एक ऐसा राज्य जो आज औद्योगिक विकास की नई पहचान बना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में राज्य लगातार उद्योग, उद्यमिता और रोजगार के क्षेत्र में नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। इसी सोच को आगे बढ़ाता है झारखंड एमएसएमई कनेक्ट पोर्टल, जिसको उद्योग विभाग झारखंड सरकार द्वारा विकसित एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो सरकार और उद्यमियों के बीच की दूरी को कम करते हुए हर आवश्यक जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। चाहे सरकारी योजनाओं की जानकारी हो, फंडिंग सपोर्ट, बिजनेस ट्रेनिंग, मार्केट एक्सेस, बायर सेलर मीट, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, प्लग एंड प्ले शेड्स या फिर उद्योग से जुड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स एंड डेटा। इतना ही नहीं, एलएमएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण भी। ये सिर्फ एक पोर्टल नहीं, बल्कि झारखंड के एमएसएमई सेक्टर को सशक्त बनाने, नए उद्यमों को गति देने और आत्मनिर्भर झारखंड के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यानी लर्निंग से ग्रोथ तक, अपॉर्चुनिटी से सक्सेस तक। आइए झारखंड सरकार के इस प्रयास का हिस्सा बनते हैं। झारखंड एमएसएमई कनेक्ट पोर्टल आपके सपनों को उद्योग से जोड़ने वाला, विकास की ओर बढ़ता एक सशक्त कदम। इस एमएसएमई कनेक्ट पोर्टल के शुभारंभ के लिए तालियां और थोड़ी जोर से बजनी चाहिए। This initiative is designed to strengthen the MSME ecosystem by improving accesses, enhancing connectivity, and creating a seamless interface between enterprises and the government. It reflects Jharkhand's commitment to fostering entrepreneurship, encouraging innovation, and building a business-friendly environment. देवी और सज्जनों, under the visionary leadership of our Honorable Chief Minister, sir, the MOU signing ceremony has been successfully concluded और ये हमारे झारखंड के विकास, निवेश और नवाचार तथा समावेशी प्रगति के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सक्षम, प्रगतिशील और जनहितकारी नेतृत्व ने ऐसी सार्थक साझेदारियों के लिए ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि एक उपयुक्त वातावरण तैयार किया है और झारखंड के उज्जवल भविष्य के प्रति विश्वास को और भी मजबूत बनाया है। At this significant moment, we now look forward to hearing the inspiring address of our Honorable Chief Minister of Jharkhand, Shri Hemant Soren ji. तो आपकी जोरदार तालियां चाहूंगी और इन्हीं जोरदार तालियों के बीच मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को आज के इस अवसर पर आपकी शुभकामनाओं के लिए, आशीर्वचनों के लिए। आज यहाँ नई दिल्ली में 2 दिन तक आयोजित नेशनल स्टॉक होल्डर
कंसल्टेशन में अलग अलग जगहों से, देश विदेशों से आए हुए आप सभी उद्योग जगत के सभी महानुभावगण, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, इन्वेस्टर्स और टूरिस्ट पार्टनर्स, पॉलिसी एक्सपर्ट तथा यहां उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि, सरकार के हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी, उपस्थित विभाग के सभी पदाधिकारीगण, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जोहार करता हूं और आज के इस सफल कार्यक्रम के लिए आभार भी व्यक्त करता हूं। कल भी हम लोग इस सभागार में एकत्रित हुए थे और आज भी, और जिस उद्देश्य को लेकर के आज हम लोग यहां आए हैं, उसकी छोटी सी झलक हम लोगों ने आज विभिन्न क्षेत्रों में सरकार और विभिन्न संस्थानों के साथ, उद्योग जगतों के साथ एमओयू करके करते हुए देखा और एक विचार था, एक सोच थी हमारी और ये सोच एक लंबे समय से एक आकार लेने की तैयारी में था। इसको लेकर विभिन्न समयों पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने बातों को पहुंचाया और आज वो बातें लगभग मूल रूप लेते दिख रही है। मुझे लगता है कि कोई भी राज्य के लिए, देश के लिए समग्र विकास की जो सोच है वो छोटे समय के लिए नहीं होता, बल्कि एक लंबे समय के लिए होता है। और हम लोग इसी सोच के साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के विचारों के साथ आगे बढ़ने की पूरी प्रयास में है और आज सरकार ने अपनी सोच, अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को भी आपके सामने प्रस्तुत किया है। कई सारे पॉलिसीज, कई सारे जो विभिन्न विभागों के हैं और कार्य क्षेत्र और उद्देश्य के बारे में आपको बताया है। कई ड्राफ्ट भी आप लोगों ने देखा है और कई सुझाव भी आप सब लोगों ने दिया है। मैं कहना चाहूंगा विशेषकर अपने विभाग के पदाधिकारियों को कि अब चूंकि अब हम लोग एक कदम आगे बढ़ चले हैं, ये कदम अब
रुके नहीं, इसके लिए हर कार्यों को हम लोग एक समय सीमा पर खत्म करते हुए, समय सीमा सुनिश्चित करते हुए हर योजना को धरातल पर उतारा जाए। और जो हमारे सहयोगी लोग जो आज, चाहे वो जिंदल ग्रुप हो, वरुण बेवरेजेज हो, टाटा समूह हो, गूगल हो, इज माई ट्रिप के लोग हों, जनरल स्टील हो, पावर न्यूक्लियर पावर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, या डिजिटल गवर्नेंस की, एआई की बात हो, इन सभी समूह के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की आवश्यकता है और एक अपनी विश्वास और राज्य की जो बहुउद्देशीय सोच है वो अब दिखनी भी चाहिए। सरकार जनताओं के द्वारा चुनी जाती है, जनता उनको चुनती है और जनता की भी बहुत बड़ी उम्मीद और भरोसा सरकार के ऊपर होती है, तभी वो सरकार बना पाते हैं। और शायद यही उद्देश्य से हमें राज्य को दिशा देने का मौका मिला है। कुछ जगहों पर, चूंकि आप सब लोग जानते हैं, झारखंड की एक ऐतिहासिक विरासत, वीरों की ये भूमि, समाज के अत्यंत पिछड़े वर्गों का बहुलता झारखंड राज्य में है। उसमें से कुछ जगहों पर जो मुझे बताया गया है कि जियाडा के जो रेगुलेशंस हैं उसमें आदिवासी समूह को 25% का आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। हम समझते हैं कि झारखंड की आत्मा हमारे आदिवासी समाज में बसती है। कहीं न कहीं सरकार भी ऐसे वर्गों को आगे बढ़ने का हर संभव प्रयास करती है। मैं विभाग को कहना चाहूंगा, इसको थोड़ा पुनः देखें और 25 से 50 कैसे किया जा सके, इस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है, ताकि ये आदिवासी समाज थोड़ी मूल जो विकास के रास्ते हैं उससे वो जुड़ पाए। कल भी हमने कहा था, क्योंकि हमारे राज्य में वर्तमान समय में हम मुख्य रूप से खनिज संपदाओं के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। हमारी निर्भरता भी माइंस, मिनरल्स पर अधिक है। अब इससे हमें अब निकलना है और हर हाल में हमें निकलना ही पड़ेगा। और ये चुनौती के रूप में हमें लेने की आवश्यकता है कि इससे हम इतर कैसे अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ा पाएं, कैसे नए क्रिएशंस हों, कैसे रिसर्च हों,
कैसे इनोवेटिव आइडियाज हम डेवलप करें, इसके लिए कहीं ना कहीं ऐसे लोग, ऐसी संस्थानें हैं जो काम करती हैं, उनका हम साथ लें, उनके साथ आगे बढ़ें। माइंड से लेके माइंड की ओर कन्वर्ट करने का जो हमने कल बात कहा है, आज उसका ही एक मूल रूप से मैं यही कहना चाहूंगा कि आज का जो ये एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट नहीं बल्कि अचीवमेंट भी हो, और पॉलिसी नहीं पॉसिबिलिटीज भी हम इसे बनाएंगे। इस उद्देश्य के साथ हम लोग आगे कदम बढ़ाएं। और काफी सारे लोगों ने मुझे अपनी जो जिस क्षेत्र के लोग हैं उन सभी एक्सपर्टों से मैं मिला। मुझे लगता है कि थोड़ा हम लोग कम्युनिकेशन में पीछे रह जाने की वजह से हमारी चीजें लोगों तक पहुंच नहीं पाती। बहुत सारे कारण रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अब ये अनवरत चलने वाला इस अथक विकास का जो ये सफर है, इसको हम सब मिलकर पूरा करेंगे। और जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उनको पूरी तरीके से आप लोगों के साथ और आप लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए राज्य की जन आकांक्षाओं को हम मिलकर पूरा करेंगे और झारखंड का समग्र विकास में एक बड़ा कार्य में हम लोग लगेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के सभा में आने के लिए। धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी की शुभकामनाओं के लिए उनका धन्यवाद दें। ये अवसर हम सबको प्रदान किया है, आपका हम बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और ये 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और ऐसे में हम सब अब अपनी ओर से एक ऐसा स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को सप्रेम भेंट करना चाहते हैं ताकि हमेशा ये 2 दिवसीय कार्यक्रम की जो स्मृतियां हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के जहन में हमेशा बनी रहें। टू कीप दीज मेमोरेबल मोमेंट्स इनसाइड योर हार्ट एंड सोल, वी आर प्रेजेंटिंग मोमेंटो। मे आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल सेक्रेटरी इंडस्ट्री श्री अरवा राजकमल सर टू प्रेजेंट memento to our honorable chief guest, honorable chief minister Jharkhand Shri Hemant Soren ji, और